अभी तक जो बातें बोली थी हमारे समझ उपस्थित अतिथियों ने जो कही, अब जो सेशन है जो प्योरली सेशन हमारे टेक्निकल है, जो कि हर एक स्पेशल मुद्दे पर बात की जाएगी। पहला सेशन जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है वो है वाटर एज ए फंडामेंटल राइट। मैं इसमें कुछ एक्सपर्ट्स लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले हमारे बीच है डॉक्टर MP शर्मा, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आजकल रॉकलैंड हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर आप। और मैं गोपाल जी से अनुरोध करना चाहूँगा डॉक्टर MP शर्मा का स्वागत करें। और जो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि कुछ फैक्ट्स और फिगर्स मैं देने वाला हूँ। वाटर कवर्स ए ह्यूज पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट इज एसेंशियल टू लाइफ। 97% of the water on earth is salt water. Of the other 3%, which is fresh water, 2/3 is frozen, locked in glaciers and inaccessible to us. Less than 1% of the world fresh water, or about 0.007% of all water on the earth, is readily accessible for direct human use. The roles that water plays on our big blue marble are many on the globe. Water is universal solvent. It is carrier of minerals and organic materials. It has the second highest specific heat capacity of any substance on earth. मैं चौधरी करण सिंह जी हमारे बीच में आ गए हैं प्रधान। मैं सर चेयर चाहूँगा, वो भी हमारे बीच आ चुके हैं और उनका स्वागत दीवान जी सर आप जो मैं आपसे फैक्ट बता रहा था कि इट हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ अर्थ, which means it plays a powerful role in regulating our planet's temperature. पानी नहीं है तो good possibility, बहुत simple. Now, for humans, access to clean water is necessary for life itself. Water-related diseases kill 3.575 million people each year. 43% of water-related deaths are due to diarrhea, and approximately 1 in 8 people, 1.1 million people, lack access to safe water supply. Now, unfortunately, the idea of water as a basic human right is not affirmed by many world leaders. It seems that water is considered a human need, but not as a right. Changing the way we think about water on our global level is key to raising the quality of life for all people. See why I'm taking some aspects here कि यहाँ से हम टेक्निकल सेशन पे इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। Now हमारी उपनिषद इस पानी के बारे में क्या कहती है? About plant, Uddalaka says, water when drunk becomes divided into 3 parts. What in its grossest ingredient that becomes urine? What is the middling ingredient that becomes blood? And what is the subtlest ingredient that becomes prana? Now, what is said about water stands for any liquid, and we must be as careful about that as about our food.
Now hence माइंड ये हमारे देखिए हमारा समाज जो हमारी बहुत पुरानी हिस्ट्री है वो पानी के बारे में क्या कह रहे हैं मैं आपको सिर्फ वो हाईलाइट कर रहा हूँ. Hence mind is made up of food and prana is made up of water. ये चंद योग्य उपनिषद 6.54 में लिखा हुआ है. उन्होंने एक एग्जाम्पल दी of the curd जो दही में होते हैं is being churned which is the surplus part rises upward and becomes the butter. जैसे कि दही बनाएंगे तो बटर बन जाता है. So also the food that is eaten that which is the surplus part rises upward and that becomes the mind. तो खाना हम खाते हैं वो जब ऊपर चल के जाता है वो हमारा माइंड बनता है उससे. Of the water that is drunk that which is the surplus part rises upward and that becomes the prana. Hence, mind is made up of food and prana is made up of water. ये हमारी उपनिषद की बात कहती है. उसके बाद बाइबल क्या कहती है? वैसे जो मैं पॉइंट में करूँ हमारे डॉक्टर एपिसोड से जाता है पर मैं क्योंकि सारी बातें टेक्निकली स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो इसमें चर्चा हम लोग करेंगे. The first time जो बाइबल में जो मेंशन है the first time water is mentioned in the scripture is found in Genesis 1:2. The earth was formless and empty and darkness covered the deep waters and the spirit of God was hovering over the surface of the waters. This is the Bible says. Before there was anything like sun or moon, earth, plants, living creatures or anything else, there was water. Having created the earth out of water and the sky in the midst of water and calling forth living creatures out of water, God continues to bear his creation with water as a sign of his care. This is what the Bible says. I'm not going into detail, but Genesis 1:2 God says, "Let the water bring forth abundantly the moving creature that have life." Now I am coming to the Quran. Allah says, "Have not those who disbelieve known that heavens and earth were joined together as one united piece? Then we parted. And when we had made them from water, every living thing, will they not then believe?" I quoted the same कुरान का जो आयत है मैंने वैसे ही कोट किया इसमें 21.30 कुरान आयत कहती है. उसके बाद अल्लाह all grandeur to him says in his glorious verses, comma, and it is he who sent the winds as good tidings before his mercy. ये अल्लाह कह रहे हैं कि दया से पहले वो winds को भेजते हैं. And we send down from the sky pure water. वो कहते हैं आसमान से स्वच्छ पानी साफ पानी भेजते हैं. ये अल्लाह ने कुरान में कहा है. The criterion 48. It is noticeable that the Quran differentiates between the word. लेकिन कुरान में पानी के ऊपर 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया. पहला शब्द ताहुर जिसे कि प्योर कहा जाता है. दूसरा शब्द फुरत जो कि स्वीट पानी कहा जाता है. कुरान में डिक्शनरी सी वाटर है जिसको कि उजाज कहा जाता है जिसे कि कड़वा पानी. मेरा ये सब तीनों अभी हमारे सामने जैन मुनि जी थे उन्होंने भी अपनी बात कही जो कि दिगंबर साहब ने 3600 साल पहले कही. मेरा सिर्फ इसका मतलब ये है कि पानी एक ऐसा पार्ट है जो धर्म कोई भी धर्म वो उसी से उगे और पानी एक प्रोमिनेंट जगह रखता है हर धर्म पे, किसी से अलग नहीं. अब मैं अपना नेक्स्ट जो इशू ले रहा हूँ उस पर मैं अपनी इंटेलेक्चुअल्स के ले रहा हूँ कि जो टॉपिक्स मैं इसमें डालने वाला हूँ. अब यूनाइटेड नेशंस जो कि एक ऐसी बॉडी है जो सभी देशों को संभालती है, इनका अपना क्राइटेरिया क्या था और क्या है. UN Charter does not speak specifically for water. Universal Declaration of Human Rights 1948
does not speak specifically for water. Article 25 proclaims everyone has the right to the standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, where water was not included specifically but considered to be implicitly included. पानी की बात उन्होंने कही नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा जब अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी स्टैंडर्ड चाहिए तो पानी इसमें इंक्लूडेड था। देखिए उसके बाद जेनेवा कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल explicitly recognizes the right to water, but such a right is focused on drinking water. उन्होंने भी खाली ड्रिंकिंग वाटर की बात की जेनेवा प्रोटोकॉल में। The 1996 covenants, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and ICESCR, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, explicitly affirm the right to life. Means no person shall be deprived of him or his life in civil or political sense. जब उन्होंने राइट टू लाइफ की बात करी, इसमें उन्होंने कहा कि पानी इसमें इम्प्लिसिट है, ये यूएन ने अपने चार्टर में बात की, लेकिन क्लियर कट वाटर की बात की। देखिए उसके बाद the General Assembly clarified and reaffirmed in its resolution 54/175 that the right to food and clean water, यहाँ आके वो स्पेसिफिक हुए, right to food and clean water are fundamental human rights and their promotion constitutes a moral imperative both for national government and for the international community. This was the first time जो कि ह्यूमन राइट ने, यूनाइटेड नेशंस ने भी इस बात को कहा कि एज ए ह्यूमन राइट, एज ए फंडामेंटल राइट हर देश को, हर इंटरनेशनल कम्युनिटी को मानना चाहिए। यूएन डिक्लेयर्स क्लीन वाटर एज ए फंडामेंटल राइट, ये 28 जुलाई 2010 को ये बात हुई। Many people around the world have little or no access to clean, किस बेस पे इन्होंने बेस क्या बनाया, little or no access to clean drinking water. The UN has declared that access to clean water and sanitation is a fundamental human right. ये पहली दफे 2010 में बात कही गई। About 1.5 million children under 5 die each year from water and sanitation-related diseases. As training countries said, the resolution was passed with 122 nations in favor, none against, and 41 abstention. तो ये ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस ने भी इस बात को कह दिया, जिसको आज हम सब लोग यहाँ पर बैठ के इसकी चर्चा करें। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सारी कंट्रियां, सारे देशों ने इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं उस पर आगे चलूँ। The notion of water as an economic good rather than as a fundamental human right persists as a transition to articulating access to water as a fundamental right is fraught with political and economic tensions. यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो इसे एज ए इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, सोशल फंडामेंटल राइट में नहीं मान रहे हैं कुछ देश। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, साइन भी कर दिया, लेकिन जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है वहां पर इसके लिए तैयार नहीं। उसके बाद अब हिंदुस्तान में क्या पोजीशन है? In India, the Constitution does not recognize a fundamental right to water. However, the right to water has been derived from the fundamental right to life under Article 21 of the Constitution. Now, in addition, the Constitution recognizes economic, social and cultural rights under the directive principle of state policy. Although non-justiciable, they are fundamental to the formulation of public policy, governance and the interpretation of the constitutional rights. Article 39B provides the state shall, in particular, direct its policy towards securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to serve the common good. The Constitution obliges the state and all citizens to protect the environment. अभी तक बात खाली environment के बेसिस पर कही, लेकिन आगे क्या हुआ है? The fundamental right to water has evolved in India not through legislative action, क्योंकि पार्लियामेंट ने इसमें भी एक्शन नहीं लिया, but through the judicial interpretation. हिंदुस्तान में जो भी अभी पानी को बर्बाद हुई है वो जुडिशियल
ऑर्डर्स नहीं हुई। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट और करना चाहूँगा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। नाउ इस पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कई जजमेंट दिए, चाहे वो नर्मदा आंदोलन पे दिए, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर यूज करके वाटर एज ए फंडामेंटल राइट को डिक्लेयर किया गया। इसमें मेरे पास बहुत सारे केसेज हैं जो कि लैंडमार्क डिसीजन हुए हैं देश के अंदर। अब मैं इसके बाद जो हमारे यहाँ जो पॉलिसी चेंज हुई है वो किस वजह से हुई है कि जो पानी प्राइवेटाइजेशन के लिए जो हो रहा है उसका सिर्फ एक कारण था कि जो 1997-2002 का जो प्लान बना था उसके अंदर सरकार ने चालाकी से एक काम किया। उन्होंने क्या किया कि पूरे सिस्टम को द गाइडलाइन रिवीजन की यूनियन गवर्नमेंट ने, हालांकि यूनियन गवर्नमेंट का सब्जेक्ट मैटर नहीं था, लेकिन उन्होंने नई स्कीम निकाली जो कि स्वजल के नाम से और स्वजल धारा के नाम से। उसमें इन्होंने क्या किया कि सारी पॉलिसी को चेंज किया। किस तरह से नाइट प्लान के अंदर इन्होंने वाटर एज ए सोशल राइट को खत्म करके वाटर एज ए सोशियो इकोनॉमिक गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। सप्लाई लाइन सिस्टम से खत्म करके डिमांड लाइन सिस्टम को खत्म कर दिया, इसको बना दिया कि भाई अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डिमांड के हिसाब से दिया जाएगा, उसमें आदमी अपनी मेंटेनेंस खुद करेगा, खर्चा खुद करेगा, पानी खुद रखेगा। इस तरह की स्कीम यूनियन गवर्नमेंट ने बनाई और स्टेट को कंपेल किया कि आपको फंड तभी मिलेंगे जबकि आप इस सिस्टम को मानेंगे। अब जिस स्टेट ने यूनियन नहीं माना उनको फंड नहीं मिले, और जिन्होंने माना वहां पर क्या हुआ कि जो गांव में जमींदार थे या जो पैसे वाले थे उन्होंने इस सिस्टम को अपनाया, उन्होंने अपना अधिकार कर लिया और जो बिजनेस बना लिया, लोगों को पानी बेचा, लेकिन जो गरीब आदमी था उसको पानी नहीं मिला और वो स्कीम ऑलमोस्ट फेल हो गई, फंड सारे चल रहे। लेकिन हमारे यहाँ 10 साल पहले जो जगह जगह पानी मिलता था अब नहीं मिलता, उसका कारण इस पॉलिसी चेंज की वजह से ही हुआ है। इस बात को करते हुए अभी जो नया 2012 का जो प्लान आया है उसमें भी इसे ऐसे सोशियो इकोनॉमिक राइट के रूप में पेश किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे आर्टिकल, मेरे पास हिंदू की भी कवरेज है, मेरे पास बाकी न्यूज़पेपर की भी कवरेज है। सबका ये कहना है कि पानी फ्री देना चाहिए, पानी को एज ए सोशियो इकोनॉमिक कमोडिटी नहीं देना चाहिए। इस सब के साथ ही मैं आज अपने बीच उपस्थित सभी अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की सभा में आए और अपने अपने विचार रखें, अपने अपने एक्सपर्ट एडवाइस हमें दें, जिससे कि हम आगे कॉर्पोरेट करके आगे चल सकें।